Good evening, students. We have already studied up to chapter 7. Now we'll start chapter 8, that is gravitation. So in this lesson, we have to study the fundamental about gravitational laws, properties of gravitation, earth gravitation, and gravitational field, potential, and etc. We know that our earth has a important property, that is a earth's gravitation. How can we understand that whenever we throw any object in upward direction, it comes back to the earth? Why? Because earth attracts all other bodies towards it. So that is called the gravitation of the earth. Now before we actually understand the gravitation, or actually we start the gravitation, we have to study certain other laws related to it, out of which the first one is a Kepler's law. It is Kepler's law. So Johannes Kepler gave 3 laws of planetary motion. Planetary motion means what? We know that our earth moves on the almost circular path or elliptical path around the sun. Also it rotates about its own axis, right, like this. Own axis also. So it does the rotational motion also, and it does the this thing, circular motion also. So related to that, the 3 laws has been given by scientist Kepler. First law, all the planets move in elliptical orbit with the sun situated at one of the foci. मतलब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, उसका सेंटर यहाँ पर O है, लेकिन इसको सेंटर कहते हैं, लेकिन इसको इन दोनों को फोकस कहते हैं. सी सर्कल में सेंटर और फोकस सेम होता है, जबकि इलिप्स में सेंटर एग्जैक्टली बीच में है और फोकस 2 होते हैं. दोनों का कॉमन नेम है फोसी. फोसी मीन्स फोकसिस. सो पी ए इज इक्वल टू, अभी जो इसमें मेजर एक्सिस है, पी ए इज द मेजर एक्सिस, एम एन इज द माइनर एक्सिस. सो पी ए 2a, एम एन इज इक्वल टू 2b. इसको हम 2a से इंडिकेट करेंगे, ये 2b से इंडिकेट होगा. OP is equal to OA is equal to A, that is equal to semi-major axis. In figure, the ellipse P and A am showing the path of the planet, which has the 2 foci S and S dash. So ये 2 फोकस इसमें है, S और S dash, और ये पूरा पाथ है इसका, और ये प्लेनेट मूव कर, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है. This law of orbit suggests different shapes of the circular orbit suggested by Copernicus. तो ये पहला लॉ है कि जितने भी प्लैनेट्स है वो सब इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करते हैं और सन दोनों में से किसी एक फोकस पे होता है. सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज. द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दिस इज सेकंड लॉ. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस, राइट, कि ये कोई भी लाइन जॉइनिंग सन एंड द प्लैनेट स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे वो इक्वल एरिया स्वैप करता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इलिप्टिकल पार्ट है, राइट. इसमें P1 और P1, P2, P3, P4 ऐसे 4 पोजीशन है. आप देख सकते हैं कि P1 और P2 का डिस्टेंस कम है, जबकि P3 और P4 का डिस्टेंस कम है. तो ये डिस्टेंस कम है, लेकिन फिर इसको अगर सन के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक अलग एरिया बनता है. आपको शेप तो दोनों एरिया का अलग अलग दिखाई देगा, ये शेडेड, लेकिन दोनों एरिया का मेजरमेंट सेम है. So they will have the same area. So when the planet is away from the sun, it goes from P1 to P2 in a certain interval of time, delta t. But when it is near to the sun, it goes from P3 to P4 in the same interval of time. Hence, according to this law, area of SP1P2 is always equal to area of SP3P4. So this is called the area swept by the line joining to the planet and sun will be always same in equal interval of time.
This law has been obtained from the observation that a planet moves slower in the orbit when it is far away from the sun, and it moves faster when it is near to the sun. We can call the area swept in unit time as areal velocity. It is called areal velocity. So area per unit time. It indicates the areal velocity is constant. Third law, what? The square of the time period, T, of the revolution of a planet, is proportional to the cube of the semi-major axis. Semi-major axis already हमने सीखा होगा. A of this elliptical orbit. That means T square is proportional to a cube. T square is proportional to a cube. तो ये इसकी third law. The time period T means the time required to complete one revolution. It is also called the period or periodic time. Now we know that T periodic time मतलब क्या होता है, एक पूरा रिवोल्यूशन, ये जो आपने पिछले उसमें पाथ देखा है, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको पीरियोडिक टाइम कहते हैं. Now the important law of the gravitation is Newton's universal law of gravitation. हम जानते हैं कि न्यूटन, हमने वो कहानी आपने अभी सुनी होगी कि न्यूटन was sitting under the tree and one apple fall right like this. झाड़ पर से जो पेड़ पर से एप्पल गिरता है और फिर उस पर से उसको ये पता चलता है कि why the apple has fallen in downward direction, why it is not going upward direction. So that gave the birth of this concept that the earth has a gravitation and it always attracts other bodies towards its center. So Newton's universal law of gravitation is as follows, that every particle in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब उसने ऐसा कहा कि कोई भी दो बॉडी m1 और m2 मासेस के हैं और उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब ये प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू सप्लाई वन कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. The direction of this force is along the line joining between them. The force is called the gravitational force. According to this law, the magnitude of the force of particle 1 of mass m1 by the other particle 2 of mass m2 lying at a distance r from it is always this. तो ये जो फॉर्मूला है वो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे. राइट लाइक दिस. नेचुरली इसका यूनिट क्या आएगा? फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है. अब यही फॉर्मूला को हम वेक्टर फॉर्मेट में भी रख सकते हैं. राइट, आप वेक्टर फॉर्मेट में भी इसको रख सकते हैं. द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज फ्रॉम पार्टिकल 1 टू पार्टिकल 2. अब वेक्टर फॉर्मेट में रखने के लिए फिर से हम x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ड्रॉ कर कोऑर्डिनेट सिस्टम. So let us consider that m1 and m2 are two masses, 1 and 2. Their position vector are r1 and r2, and the distance between them vector is r12. G is a constant. It is called the universal gravitational constant because its value is same at all the places and all the universe. The value of G first determined by Cavendish. Its value is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton into meter square per kg square. Dimensional formula यहाँ पर दी हुई है, तो आप इजीली बना सकते हैं. In order to write the equation in vector form, consider figure. अभी ये figure हम consider करते हैं vector format के लिए. From figure r1 to r2 minus r1, आप जानते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस वेक्टर होता है वो पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस का होता है. सो फाइनल माइनस इनिशियल. सो r12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो r2 minus r1 अपॉन मैग्नीट्यूड r2 minus r1 अपॉन r. अब इसको वेक्टर फॉर्मेट में रखना है तो here r is equal to this. It is clear from the figure that F12 force on 1 by 2 that is equal to G m1 m2 upon r square r1.
सिमिलरली फोर्स ऑन 2/1, ये सिंपल इक्वेशंस है, आप खुद भी बना सकते हैं। दैट इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट आएगा। सो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r21। सो r12 और r21 एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। सो दिस इज व्हाट द वेक्टर फॉर्मेट। आपको 2 मार्क के लिए ये पूछ सकते हैं कि राइट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, राइट? सो यू कैन understand accordingly. Next point is force due to an extended object. Extended मतलब अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट के बीच का कितना फोर्स होता है वो तो हमने देख ही लिया। 2 से ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो रिजल्टिंग फोर्स कितना होगा? So an extended object can be considered as a collection of point masses, that is the particles. So force due to such an extended object on a point mass is equal to the vector sum of the force exerted on it by all the point masses in the extended object. Thus the force on particle 1 by other objects. Naturally किसी एक पार्टिकल का जो फोर्स है, किसी एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी सारे पार्टिकल्स जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं उन सबका टोटल। So F12, F13, F14, F15 and so on. That is equal to Gm1 m2 upon r12 square, Gm1 m2 upon r13 square, Gm1 m4 upon r14 square and so on. So it is a vector addition of all the forces exerted by other particles on a given particle. तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो इसको सिग्मा के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। So this is what called the resulting force on extended object. आगे बढ़ते हैं। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल का एक्स एक्सेलरेशन, हमने बहुत सारी फॉर्मूला में जी की वैल्यू 9.8 ली हुई। अब अगर स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल के लेसन में यू विल फाइंड 2 डिफरेंट जी, एक कैपिटल जी है, एक स्मॉल जी है। कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं और स्मॉल जी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो क्या एक्सेलरेशन है ये? यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगता है तो उसमें एक एक्सेलरेशन आ जाता है। अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो नेचुरली उसके अंदर एक ग्रेविटेशन आएगा, एक एक्सेलरेशन आएगा। वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेट द मास ऑफ द अर्थ बी। अभी इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? वैल्यू कैसे फाइंड करें? सो लेट द, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो इसकी थियरी क्या है? इसको यहाँ ले। Let the mass of the earth be m e. Suppose earth का mass m e है, radius r e. The gravitational force on the earth on the particle of mass m at a distance r from the center. अब ये फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। So F is equal to G m1 m2 upon r square में m1 की जगह mass of earth रख दिया, m2 की जगह m रख दिया, कौन सा? उस बॉडी का मास, और r मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। Hence from Newton's second law of motion we can write the acceleration due to gravity. अब F is equal to mg भी होता है, so g is equal to f upon m। F की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, g m e m upon r square, उसमें से m m कैंसिल हो गया तो g m e upon r square। Now if the body जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो अगर अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है, हाँ, तो अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस अर्थ के रेडियस जितना हो जाएगा। So now if for the particle on the surface of the earth r must be equal to r e, तो यहाँ पर r e रख देते हैं। So acceleration due to gravity of the particle on the earth surface is g m e upon r e square, g m e upon r e square हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज इसमें रख देते हैं, कौन सी? एक तो g की वैल्यू रख देते हैं 6.67 into 10 raised to -11, m e की वैल्यू रख देते हैं 6 into 10 raised to 24,
और आर की वैल्यू रख देते हैं 6400 किलोमीटर, दैट मीन्स 64 इंटू 10⁵ मीटर। अब ये सारी वैल्यूज रख के अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको मिल जाएगा आंसर 9.8। ये अप्रोक्सीमेट, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा कुछ 9.87523457 ऐसा कुछ मिलेगा, हमने राउंड फिगर ले लिया है 9.8। So this is the method how we can find out the value of 9.8. 9.8, that is the value of gravitation acceleration. Now the value of this gravitational acceleration naturally, इसकी अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो it is inversely proportional to the square of the distance of object from the center of the earth or any planet. तो अगर ये डिस्टेंस बदलेगा तो जी की वैल्यू चेंज होगी। अब अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई बॉडी पड़ी हुई है और उसे हमें दूर ले जाना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ऊपर 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 मतलब उसकी हाइट बढ़ाते चले जाएंगे तो अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, या तो हम खड्डा खोद के उसको नीचे 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 ले जाएंगे तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कम होगा। अब दोनों केसेस में स्मॉल जी की वैल्यू तो चेंज होनी ही है, तो ये किस तरह से चेंज होता है, उसमें वेरिएशन क्या आता है वो हम पता करेंगे। तो अगली थियरी इसके लिए है वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मींस हाइट, सो डिस्टेंस इंक्रीज होने वाला एल्टीट्यूड। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज गिवन बाय जी.m.e अपॉन r स्क्वायर। अब ये अर्थ का सेंटर है, पहले ये बॉडी यहाँ पर, ये जो अर्थ का सरफेस है वहां पर पड़ा था, वहां से h हाइट के ऊपर लेके गए। अब नेचुरली सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, re plus h, मतलब उसको हम स्मॉल r से इंडिकेट करेंगे। So the point P at a height h from the Earth's surface is at a distance r is equal to re plus h from the center of the Earth, right? तो center of the Earth से तो re की जगह हम re plus h रख देते हैं, right? re की जगह हम re plus h रख देते हैं। The gravitational force तो इस फॉर्मूला में re की जगह the gravitational force of the Earth by the body and mass at this point is f of h is equal to g.m.e m upon re plus h whole square. At p, gravitational acceleration is gh is equal to g.m.e re plus h whole square. अब दोनों को डिवाइड कर देते, ge को gh से डिवाइड कर देते। फिर से एक बार समझ लीजिए, ge मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और gh क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर हाइट। तो अगर डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से डिवाइड होगी तो आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, इसमें से आर ई स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं और ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले लेंगे और ये सिंपल मैथमेटिक्स है, जी एच इज इक्वल टू जी 1 प्लस आर ई एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले लेंगे तो -2 आ जाएगा। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस दैट जी एच इज ऑलवेज लेस देन जी ई। इसका मतलब ये कम होता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि किसी वैल्यू को अगर हम किसी चीज से डिवाइड करते हैं और वो भी 1 से जब बड़ा है नंबर, तो नेचुरली उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। यूजिंग बाइनोमियल थियरम में h इज लेस देन re, तो ये नेचुरली ये फाइनली ऐसे बन जाता है। अब बाइनोमियल थियरम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि gh इज इक्वल टू g1 - 2h अपॉन r। See, a plus b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, लेकिन a प्लस b होल रेज टू -2 है, तो आप a - 2h लिख सकते हैं। तो ये वो वाला, उसे बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, जो कि आप बाद में कभी पढ़ेंगे। Thus on the surface, Earth entire surface, for the small height of the surface, we can take g is equal to g 9.8 for practical purpose. अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे g की वैल्यू कम होती चली जाएगी, 9.8 से कम होती चली जाएगी, और एक पर्टिकुलर हाइट पे g की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये h इज इक्वल टू re/2 हो जाएगा, re इज इक्वल टू h/2 हो जाएगा, h इज इक्वल टू re/2 हो जाएगा, h इज इक्वल टू re/2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा।
अब सिमिलरली वेरिएशन इन द ग्रेविटेशनल एक्सचेंज विद डेप्थ, अब हम खड्डा खोद के नीचे जा रहे हैं, नेचुरली तो भी वैल्यू कम होनी है, लेकिन फिर इसी फॉर्मूला की तरह कम होती है या कोई दूसरी फॉर्मूला से, वो देखते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल अर्थ है, बाहर का सरफेस। अब हमने डी जितना खड्डा खोद डाला और अंदर चले गए, तो पहले रेडियस आ रही थी, अब डी खड्डा खोद के अंदर चले गए, तो अब रेडियस कितनी हो गई, आर ई माइनस डी। पहले आर ई प्लस एच था, अब आर ई माइनस डी, वो तो आप समझ सकते हैं। तो कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m at point P at a depth d from the surface of the earth. It is at a distance r is equal to r minus d from the center of the earth. अब क्या होगा, to find the earth's gravitational force on this particle, we can imagine the earth is made up of a small solid sphere of radius r, re minus d, and the spherical shell of thickness d over it. This particle at point P is situated inside this hollow spherical shell. Hence, the gravitational force on this particle due to shell is zero. Shell की वजह से gravitational force नहीं लगेगा. Moreover, this particle is also on the outer surface of the small sphere of the radius r. Hence, the gravitational force on this particle can be obtained by considering the entire mass m dash of small sphere at its center O. If the density of the earth is rho, then rho is equal to total mass upon total volume. So me upon volume of earth. The mass of the small sphere of radius, that is m dash is equal to volume into density. तो volume कितना होगा, 4/3 pi r cube, ये अंदर का volume बता रहा हूँ, और डेंसिटी rho है, rho की वैल्यू यहाँ से रख देंगे me upon this, तो ये यहाँ पर से हम रख सकते हैं। अब g की वैल्यू फाइंड करनी है, तो g m dash upon r square. So g upon r square as it is, m dash की वैल्यू 4/3 pi r cube into rho, उसमें से r square कैंसिल हो जाएगा, so 4/3 pi g rho r. From this equation the gravitational acceleration of the surface r is equal to r ही रख देते हैं, so 4/3 pi g rho. So दोनों को डिवाइड कर देते हैं, gr upon ge, that is equal to r upon r. So gr is equal to g into r upon r. From equation it is clear that gr is proportional to distance r from the center of the earth up to the surface. Thus the gravitational acceleration at a point inside the earth is directly proportional to the distance of that point from the center of the earth. देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, अर्थ के सरफेस से जैसे ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अर्थ के सेंटर से सरफेस तक जाएंगे, सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक मतलब अर्थ के अंदर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, इतना डिफरेंस है. Hence, starting from the center of the earth, gr decreases in direct proportion and r increases, and then outside the surface gr decreases as inverse square of the distance. Such variation in gr shown in the figure. तो ये फिगर में इसका ग्राफ दिखा रहा है. सरफेस पे मैक्सिमम है, आप नीचे जाएंगे तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो भी एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, लेकिन ऊपर ज्यादा प्रोपोर्शन से कम होगा जबकि नीचे कम प्रोपोर्शन से कम होगा. ये 1/r से कम होगा, ये 1/r स्क्वायर से कम होगा. सरफेस पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन है. सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग r इज इक्वल टू r e माइनस डी, हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज g into 1 minus d upon r. उसमें 2h upon r मिलता था, इसमें d upon r मिल रहा है. सो ये एक डिफरेंस आपको समझना चाहिए. इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. Thus the acceleration due to Earth gravity is maximum on its surface, and from there on, going above or below, it decreases. It becomes zero at the Earth's center. This is very notable fact. आप देख लीजिए, अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन जीरो. So variation in effective gravitational acceleration g dash with latitude due to Earth's rotation. अब आपको और एक बात बता देते हैं साहब,
आपने इससे पहले एल्टीट्यूड वर्ड सुन लिया। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो एल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड्स, लेटीट्यूड क्या होता है? लेटीट्यूड की जरूरत स्फीयर के केस में ही पड़ सकती है, क्योंकि स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर फ्लैट नहीं है, थ्री डायमेंशनल। तो जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर मूव करते हैं वैसे डिस्टेंस तो सेंटर से बढ़ता ही है, लेकिन उसका एंगल भी चेंज होता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड लेटीट्यूड, राइट? एंगल भी चेंज होता है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टली जाएंगे या वर्टिकली जाएंगे, हर केस में एंगल चेंज होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन g डैश विथ लैटिट्यूड ड्यू टू अर्थ, प्लस अर्थ रोटेट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि हम मूव नहीं भी करते हैं और किसी एक जगह फिक्स है, तो भी अर्थ रोटेट करने की वजह से हमारे एंगल चेंज होते हैं। द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग ए गिवन प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द अर्थ सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विद द इक्वेटोरियल लाइन इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको और हमारी पोजीशन वाले जॉइंट वाली जो लाइन है उसको, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को एक जगह मिला दीजिए, तो फिर बीच में जो एंगल पड़ता है उसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 0 डैश फॉर द पोल्स एंड लैटिट्यूड लैम्बडा इज इक्वल टू, मतलब इक्वेटर के लिए लैम्बडा 0 डिग्री है और लैटिट्यूड पोल्स के लिए 90 डिग्री। तभी आप समझ गए होंगे कि लैटिट्यूड बेसिकली है क्या। एज शोन इन फिगर, अब ये फिगर में हम देखते हैं। As shown in figure, the latitude of the pole P on the Earth's surface lambda is equal to POE. This is POE. ये latitude. At this position, consider a particle of mass m. We have to think of two forces acting on it. एक तो Earth's gravitational force mg, वो PO के डायरेक्शन में, मतलब सेंटर की तरफ लगेगा, P से O। अब देख रहे हैं मैं माउस पॉइंटर घुमा, सेंटर की तरफ लगेगा। दूसरा इस डायरेक्शन में लगेगा, right? This is the first force. Second force क्या है? To understand the force, another force, consider the rotation of the earth. The earth has an acceleration due to its rotational motion. So this particle is in the accelerated form of the reference. At this point, the acceleration of the frame of reference is v square upon r. तो उसका acceleration कितना होता है? v square upon, हम जानते हैं, तो v circular मोशन के लिए v square upon r। तो pm in the direction towards the center of the circular path. Hence we have to consider the fictitious acceleration v square upon r and the fictitious force mv square upon r in the opposite direction, that is in mp or q direction. The component of this force pr is mv square upon r cos। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, वो यहाँ पर दिखाए हुए दो कंपोनेंट है, राइट, लाइक दिस। तो ये जो कंपोनेंट है क्यू के डायरेक्शन में, एम पी क्यू, इस डायरेक्शन में, उसको कॉस लैम्बडा कहते हैं, और ऊपर के डायरेक्शन में जो होगा वो साइन लैम्बडा, राइट, लाइक दिस। सो दैट इज कॉस लैम्बडा हमारे कैलकुलेशन में आएगा। This is the second force to be considered. Thus, considering two forces, the effective force on the particle at P towards the center of the earth is mg dash is equal to mg minus mv square upon r cos lambda। इतना उसमें से कम होता है, where g dash is the effective gravitational acceleration at this place obtained by considering rotation of the earth। g is equal to gravitational acceleration normal, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। सो g dash is equal to m से डिवाइड कर देते हैं तो g minus v square upon r cos lambda, but v is equal to r lambda, r ओमेगा, ओमेगा एंगुलर स्पीड, तो वो सब यहाँ पर रख देंगे। तो फाइनली ये सारा मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स से आपको ये मिल जाएगा, g dash is equal to g 1 minus r e ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्बडा अपॉन g। अब इसमें दो पॉइंट रखते हैं, एक तो लैम्बडा की वैल्यू 0 रखते हैं और लैम्बडा की वैल्यू π/2 रखते हैं। तो अगर मैं लैम्बडा की वैल्यू 0 रखूंगा, so at equator lambda is equal to 0, cos lambda 1 हो जाएगा। इसका मतलब है g dash is equal to g minus r e omega square, which shows the maximum value of effective gravitational acceleration। ये मैक्सिमम होता है at poles में 90 डिग्री, इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगा। so g dash is equal to g,
which shows the maximum value of effective gravitational acceleration, right, like this. तो ये important. तो यहाँ तक आज का ये सेशन हम रखते हैं. इसके बाद के जो भी थियरी हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट. तब तक इतना प्रिपेयर करिए. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरीज मैंने स्लाइड शो के फॉर्मेट में रखी हैं पावर पॉइंट के बेस पे. तो एवरी स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और आप प्रिपेयर करिए. मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू.